These 5 names are the 5 Shah dynasties. Shah dynasties 5 जगह में थे. विजयपुरा, विजयपुर, बीदार, गोलकोंडा, अहमदानगर, बेरार. ये जगहों के नाम we have to remember. Okay, we have to remember Adil Shahs were from which place, Barid Shahs from which place, Qutub Shahs, Nazim Shahs, Imad Shahs were from which place. Okay. Please stop drawing on my screen. Mute yourself. Okay, so first we'll see the story of how Bahmani Sultan से Shah dynasty कैसे बने. Okay, तो story of how Bahmani Sultans उनका एम्पायर कैसे खत्म हुआ और शाह डायनास्टीज कैसे आए उससे. ठीक है, लेट्स सी दैट स्टोरी. Dynasties. After Muhammad Gawan, Bahmani kingdom did not continue its rule strongly. That means it was getting declined. The sultans who came to power after Muhammad III were incompetent to rule after Muhammad III. So all the sultans who came to power after Muhammad III were what? They were incompetent. Their rule was incompetent and it was slowly declining. Muhammad came to power, but he was a little boy and could not rule the kingdom. So because he was a little boy, he couldn't rule the kingdom. And the last. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद गवान को कैसे मारा था? Who remembers? What, Shahid? Muhammad III were incompetent to rule after Muhammad III. So all the sultans who came to power after Muhammad III were what? They were incompetent. Their rule was incompetent and it was slowly declining. Muhammad came to power, but he was a little boy and could not rule the kingdom. So because he was a little boy, he couldn't rule the kingdom. And the last king was Sultan Kalimullah Shah. After his death, Bahmani kingdom was broken into 5 states of Shahi. Let us see the 5 states. Adil Shah of Bijapur, that is Vijaypura, now it is called. Bari Shah of Bidar, Qutub Shah of Golconda, Nizam Shahs of Ahmadnagar, Imad Shah of Berar. Okay, just because I was not recording, just quickly again I will say for you also to listen. Please turn on your videos, everybody. सबसे पहले मोहम्मद गवान के बाद मोहम्मद III, उसके बाद आए थे मोहम्मद III एंड मोहम्मद. सी द 2 names are over here. These are different people. जो ये मोहम्मद थे ये छोटे बच्चे थे, इनको रूल करना नहीं आता था. तो इनके बाद कौन आया बताओ? Who will tell me? Kalimullah ma'am. Yes, Sultan Kalimullah Shah. After Sultan Kalimullah Shah died, Bahmani kingdom was broken into what? 5 states. 5 states of Shahi. Okay, great. Now, okay guys, let's continue. Now let us go to Adil Shah's. हम सारे 5 किंग्स के बारे में एक एक करके इतने सारे जितने भी किंग्स हैं, इतने सारे नहीं, मतलब अलग अलग जो भी शाही के 5 शाही के जितने किंग्स हैं, कुछ किंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर और विजयपुरा. Of Bijapur, who ruled from 1489 till 1686 CE. So here are the Adil Shahs. The first one is Yusuf Adil Khan. Second, Ismail Adil Khan, Ibrahim Adil Khan, Ali Adil Shah, Ibrahim Adil Shah II, Muhammad Adil Shah, Ali Adil Shah II, Sikandar Adil Shah, Yusuf Adil. ओके, ये जो ऑर्डर है इसमें ये आदिल शाह सबके नाम के पीछे आदिल शाह रखा है. Adil Khan. Let's continue. Adil Khan was the founder of Adil Shah's dynasty of Vijay. Yes. ठीक है, आदिल शाह dynasty was started by whom? Yusuf Adil Khan. Yusuf Adil Khan. Very good. Let's continue with the video. Please underline that word, okay? Underline his name. He was a good administrator and tolerant towards other religions. After him, Ibrahim Adil Shah II came into power.
So let us know about Ibrahim Adil Shah too. He ruled from You can take a screenshot of all this. Okay, these are actions of these kings. Okay, so Ibrahim Adil Shah के actions की इन्होंने क्या किया, why was he so great, all these things are written here. What does religious tolerance means? He was a good administration and tolerant towards other religions. का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था. Religious tolerance का मतलब a person who is very interested in all religions. He does not have a problem with any religion. Okay, please remember this. Tolerance मतलब कुछ भी सह लेना. ठीक है, तो कितने भी religions हो, he never had a problem with that. He accepted all religions. 1580 to 1626 CE. Ibrahim Adil Shah II was the great king among other sultans. He expanded his kingdom and became rich in his period. He got the title called Jagat Guru Badshah. Underline this. He had also sheltered many Hindu philosophers, poets, and musicians in his court. He renovated Datta temple in his fort and encouraged puja rituals. He worked for the cultural harmony of Hindu-Muslim. He also wrote a book called Kitab-e-Navras and Underline. tried to make music popular among Muslims. Underline Kitab-e-Navras. He himself was a great musician. Ibrahim Rauza, which is famous for its architecture, was built by him. Again underline. Okay, so actions. ठीक है, एक्शन में सबसे पहले ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग अमंग अदर सुल्तान्स. इतने सारे सुल्तान्स थे, लेकिन हम इब्राहिम आदिल शाह के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ही वॉज द ग्रेट किंग, द ग्रेटेस्ट किंग अमंग अदर सुल्तान्स ऑफ दिस आदिल शाह ऑफ विजयपुरा. ये जो एक इनमें से जो बीजापुर के आदिल शाह थे, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे थे, सबसे ग्रेट किंग थे इब्राहिम आदिल शाह. ठीक है, सिंस ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम, अपने लैंड को उन्होंने हर जगह पे वॉर करा के कैप्चर कर करके बहुत बड़ा सा लैंड बना दिया. ठीक है, इसलिए उनका नाम रख दिया जगत गुरु बादशाह, पूरे जगत का गुरु, एंड ही इज द होल वर्ल्ड्स बादशाह, इसलिए उनका नाम जगत गुरु बादशाह लगा दिया. ठीक है, ही वाज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स, मतलब उनको सारे रिलीजन्स पसंद थे, और वो सारे पोएट्स, फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस, जितने भी गाना लिखने वाले लोग, जो भी साइंटिस्ट लोग, ये सारे फिलोसोफर्स, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, ये सारे जो फेमस लोग थे, उनको वो अपने कोर्ट में, अपने महल में रहने के लिए जगह देते थे कि आप लोग मेरे साथ आके रहो एंड मेरी किंगडम को पढ़ाओ. ठीक है, एंड ही वर्कड ऑन कल्चरल हार्मनी ऑफ हिंदू मुस्लिम, की हिंदू मुस्लिम भाई भाई. ठीक है, ही वांटेड एवरीबॉडी टू लिव टुगेदर. इनकी बुक का नाम किताबे नवरस था, और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि इन लोगों ने ये कितने कितने गॉड्स को वर्शिप करते थे, और इन लोगों ने, इन किंग ने उन सारे गॉड्स के बारे में बुक्स लिखी थी. ठीक है, और वो उन्होंने गाना भी लिखा था जिसका नाम था इब्राहिम रौजा. सॉरी, इब्राहिम रौजा वाज अ building that was made by him, sorry, and he also used to write a lot of music. ठीक है, let's continue with the video. Everybody go on mute. Here you can see the monument Ibrahim Rauza, which is in Bijapur. See how beautiful it is. Let us go to Barid Shah of Bidar, 1489 to 1619 CE. When Bahmani state was scattered into many provinces, Barid Shah ruled Deccan, Bidar, and other regions around it. Qasim Barid was the founder of this dynasty. Underline this, Qasim After Barid. him, Ibrahim and his brother Qasim, who ruled Bidar, were incompetent kings. And because of their inner conflicts, this dynasty declined. Then Ibrahim Adil Shah of Bijapur captured Bidar. Like this, Barid Shah kingdom was merged into Ibrahim's Bijapur state. Okay, so story of Bidar. ठीक है, तो जो बहामनी स्टेट जब स्कैटर हो गया था, स्कैटर मतलब टूट गया था, तो 5 प्रोविंस बने थे, 5 शाहीज बने थे, उनमें से एक और का नाम है बारिद शाह, मतलब बीदर में, और बीदर वाले जो जगह थी उनको रूल करते थे बारिद शाह, जैसे ऊपर आदिल शाह, यहाँ पे बारिद शाह. ठीक है, तो अब बारिद शाह के फाउंडर, यानी सॉरी, बीदर में जो अपनी किंगडम स्टार्ट कर रहा था, वो उनका नाम था कासिम बारिद, इसलिए उसको बारिद शाह डायनास्टी बोलते हैं.
ठीक है, तो उनका नाम कासिम बारिद है, इसलिए बारिद शाह। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था बीदर में अपनी डायनास्टी, बारिद शाह की डायनास्टी स्टार्ट करी थी। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके इब्राहिम और उनके भाई कासिम, ये दोनों लोगों ने रूल किया। दिस इब्राहिम इज डिफरेंट and this Ibrahim is different. Okay, this is Ibrahim Adil Shah, this is Ibrahim Barid Shah. ठीक है, it's confusing I know, but it's good only ना, now you have to remember same names only, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इब्राहिम और कासिम जो थे, they were again incompetent kings। incompetent kings मतलब क्या? तो incompetent kings का मतलब these kings were not good enough, ये kings अच्छे से नहीं रूल करते थे, इसके वजह से जो बारिद शाह की डायनास्टी है वो खत्म हो गई। और इब्राहिम आदिल शाह, ये दूसरे इब्राहिम है जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इब्राहिम और कासिम जो थे, इब्राहिम एंड कासिम बारिद शाह, ये लोग अच्छे किंग्स नहीं थे। तो इब्राहिम आदिल शाह फ्रॉम विजयपुरा, जो हमने फर्स्ट हमने डेक्कन सल्तनत पढ़ा था, ही केम एंड ही कैप्चर्ड बीदर। इन लोगों ने बीजापुर। So after these kings, Ibrahim Adil Shah of Bijapur or Vijaypura, he captured Bidar, and like that Barid Shah kingdom और बीजापुर का जो किंगडम था, बारिद शाह और आदिल शाह के दोनों किंगडम्स मर्ज हो गए, साथ में आ गए। Got it? Let us learn about Qutub Shahs of Golconda, who ruled from 1512 to 1687 CE. Wali Qutub Shah, he was the founder of independent Golconda state. He ruled the state with good administration, and in 1543 CE, he was killed by his own son. Then comes Ibrahim. He had compassion for Hindu religion, and there were many Hindu officers in his administration. He changed his capital from Golconda to Hyderabad in 1589 CE. After him, Abdul Qutub Shah, Abdul Hasan and others came to the power, but they were incompetent kings, and later Golconda surrendered to the Mongols. Okay, ये सारी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नाउ आपको क्या पता चलेगा कि ये गोलकोंडा सुना है ना आप लोगों ने? गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोगों ने गोलकोंडा के बारे में सुना है। गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद, यस, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट। आपको पता है आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, यस, ओके। अभी आपको दिख रहा है ना कैसे कुछ साल पहले, मतलब अराउंड 500 इयर्स अगो, दीज किंग्स, इन्होंने जो रूल किया उसके वजह से कैसे स्टेट्स डिवाइड हुए, कैसे हैदराबाद को कैपिटल बना दिया। ठीक है, सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ हाउ इट हैपेंड। ओके, तो काली कुतुब शाह जो थे, उन्होंने गोलकोंडा स्टेट में, ही वाज द फाउंडर ऑफ इट, मतलब इन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। अगेन जैसे बहमनी किंगडम डिक्लाइन हुआ या फिर खत्म हुआ, डिक्लाइन होना मतलब खत्म होना, तो 5 डेक्कन सल्तनत, 2 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बीजापुर एंड ये बारिद शाह एंड आदिल शाह के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अभी हम लोग कुतुब शाह के बारे में पढ़ रहे हैं जो गोलकोंडा में रूल करते थे। तो इनके फाउंडर का नाम था क्वाली कुतुब शाह, एंड यू कैन सी ही वाज किल्ड बाय हिज ओन सन। Why, ma'am? He killed the Yes, I am telling you. I know this. Somebody would ask why. Why? Because sometimes when kings get old, their sons will be like, "अरे ये तो old हो गए हैं. I have to rule this kingdom now. Let me just finish off the case. Let me kill this person so that I can rule, so that I can be the king." तो ऐसे ही फैमिली में भी दुश्मनी हो जाती थी किंग्स के बीच में। Yes, ma'am. Bahubali. Like Bahubali. Yes, Bahubali. Yes. ओके, गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे ही मार दिया था उनको ताकि दूसरे रूल कर सके। बाहुबली में कटप्पा ने मारा था टू प्रोटेक्ट हिम। ठीक है, इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक और इब्राहिम वाज अ वेरी फेमस नेम, बहुत सारे इब्राहिम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुतुब शाह, बारिद शाह, आदिल शाह, तीनों में वी हैव 1 इब्राहिम। ठीक है, तो ही हैड कंपैशन फॉर हिंदू रिलीजन एंड
Muslim, all religions. Again, he was very compassionate, so he wanted all Hindu, Muslim भाई भाई बन के रहना है, सब लोग साथ में रहना है, ठीक है. तो उन्होंने गोलकुंडा फोर्ट बनाया, पूरे गोलकुंडा सिटी को बहुत सुंदर से बना दिया, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सिटी बना दिया उसको. But then he changed the capital from Golconda to Hyderabad. This tells us कि पहले जो कैपिटल था वो गोलकोंडा था. अगर इन किंग ने हैदराबाद तक नहीं चेंज किया होता कैपिटल, तो आज भी शायद आंध्र प्रदेश का कैपिटल गोलकोंडा होता. बट अभी क्या है, इट्स हैदराबाद. दैट इज बिकॉज ऑफ मे बी दिस किंग, बिकॉज ही चेंज्ड. सो व्हेन द स्टेट्स वर मेड, सो वी डिसाइडेड लेट्स कीप हैदराबाद एज द कैपिटल. ओके. अगेन यहाँ पे कुछ किंग्स के नाम है. इब्राहिम के बाद अब्दुल कुतुब शाह आए, फिर अब्दुल हसन आए, एंड बहुत सारे और भी लोग थे जो पावर में आए. उन किंग्स के नाम नहीं दिए बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन ये जो किंग्स थे, अगेन इनकॉम्पिटेंट किंग्स. तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न, पे अटेंशन, एक पैटर्न. ये तीनों जो डायनास्टीज थे, दिल्ली डेक्कन सल्तनत की 3 डायनास्टीज जो थे, ये डिक्लाइन क्यों हुए, ये खत्म क्यों हुए? क्योंकि इनके कुछ रूलर्स इनकॉम्पिटेंट थे. दे वर नॉट गुड इनफ फॉर रूलिंग. वो लोग अच्छे से रूल नहीं करते थे, इसीलिए वो जो ये 3 डायनास्टीज है ये खत्म हो गई, ठीक है. दे डिक्लाइंड. So because a few other rulers after Abdul Qutub Shah and Abdul Hasan, they were not good. So this kingdom also declined, and later Golconda was surrendered to Mughals. Mughal empire के अंदर चला गया गोलकोंडा, ठीक है. So this is the story of Golconda, Hyderabad, and who? What are the name of these kings? Adil. Qutub Shah Ibrahim. Qutub Shahs of Golconda, ठीक है. Okay, give. चलो, let's continue. Next comes Nizam Shah of Ahmednagar, who ruled from 1490 to 1636 CE. In 1419 CE, Malik Ahmad, who was the chief of Junnar province, founded his own state of Ahmednagar and established Nizam Shah dynasty. He took Daulatabad under his control and expanded his empire. With the death of Chand Bibi, Ahmednagar declined. So the next is Imad. Okay, ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी. मलिक अहमद, देखो हर एक डायनास्टी के पास उनके फाउंडर का नाम दिया है, तो यू शुड नो कि किसने फाउंड किया था, किसने स्टार्ट किया था ये डायनास्टी, ठीक है. तो मलिक अहमद ने निजाम शाह डायनास्टी स्टार्ट किया था. यहाँ पे ऊपर भी नाम है, सो प्लीज अंडरलाइन दोस थिंग्स. यहाँ पे क्वाली कुतुब शाह ने कुतुब शाह डायनास्टी स्टार्ट किया था. ओके, प्लीज गो बैक, बाकी दो अंडरलाइन करना खुद से देख के. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस आफ्टर वी आर डन रीडिंग दिस लास्ट किंग का, लास्ट डायनास्टी का स्टोरी ऑल्सो, ठीक है. सो ही वाज द चीफ ऑफ जूनार. इन्होंने जब बहामनी किंगडम डिक्लाइन हो गया था, ये अहमदनगर गए थे, अहमदनगर गए थे. अहमदनगर जाके इन्होंने अपनी डायनास्टी स्टार्ट करी थी, निजाम शाह डायनास्टी, ठीक है. इन्होंने दौलताबाद को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था. आफ्टर हिम अगेन अ फ्यू किंग्स, बुरहान, हुसैन निजाम शाह, मुर्तजा, दीज वर द सुल्तान्स. जस्ट फॉर नेम सेक, मतलब ऐसी किंग थे, इनका कोई फायदा नहीं था, इन्होंने कुछ किया नहीं अपने किंगडम में, ये बस रूल करते थे, जो था वही रूल करके निकल गए, ठीक है. आफ्टर डेथ ऑफ चांद बीबी, ये जितने भी सुल्तान्स थे, बुरहान, हुसैन, नजीम शाह एंड मुर्तजा, इनके बाद चांद बीबी आए. चांद बीबी की स्टोरीज बहुत बहुत फेमस है, इस बुक में नहीं दिया है, बट आई वांट यू ऑल टू गूगल इट. ओके, इसको गूगल करना है. तो चांद बीबी के बाद अहमदनगर डिक्लाइंड. ओके, डिग्रेडेड का मतलब बताओ. गूगल तो कर लिया, डिग्रेडेड का मतलब बताओ. Yes, ma'am. Very smart, Umesh. Like first thing you do is you open Google. Whatever Google says, you'll vomit it out. You don't know what degrading means. Degrading also means to reduce. Okay, something that is degraded means. Acha. Okay, so we can say na Taj Mahal is getting degraded. ठीक है, guys. Okay, last king, Imad Shah of Berar. Shah of Berar.
They ruled from 1490 to 1580 C. After the fall of Bahmani kingdom, 5 Sultan states came to existence. Imad Shah dynasty of Virar is one among them. It was situated between Penganga and Wainganga rivers at Underline. Wardha, Kapti to north of Bidar. In 1490, Fatullah founded his dynasty. फाउंडर का नाम Was the फतुल्ला. capital. Fatullah had a title called Imad ul Mulk. After his death in 1504 CE, his son Alauddin Imad Shah came to the power. He was an incompetent king. After him, his son Darya Imad Shah came to the power, and during his rule also, Berar dynasty continued its battles with neighboring states. After the death of Darya Imad Shah, his son Burhan Imad Shah took the power. During his rule, power came to the hands of usurper called Tufail Khan. Later, Bidar dynasty fell into the hands of Vijaypura sultans. Okay, guys. Now I want you to one second. Let me pause. हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था. When we studied about विजयनगर एम्पायर, I already told you that जो 5 Deccan Sultanates थे वो आपस में लड़ते रहते थे. In Rakasa Tangadi battle, I told you, no, they used to fight with each other, but they said let's defeat विजयनगर एम्पायर. So अपनी लड़ाई भूल के हम लोग एक साथ ज्वाइन कर लेते विजयनगर एम्पायर को खत्म करने के लिए. So I told you that these 5 empires, 5 Deccan Sultanates, they used to fight with each other. Why they used to fight with each other? Because these kings were incompetent. इनको रूल करना नहीं आता था ठीक से, तो ये लोग आपस में ऐसे लड़ाई करते रहते थे फालतू में कि अच्छा इस जगह को कैप्चर कर लेते, यहाँ पे जाके लड़ाई कर लेते, उधर जाके लड़ाई कर लेते, हर जगह जाके लड़ाई कर लेते थे. ठीक है. तो आफ्टर डेथ ऑफ दारिया इमद शाह, उनके सन बुरहान इमद शाह टुक ओवर द पावर. ठीक है. बट ही वॉज ऑल्सो इनकम्पिटेंट रूलर. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया है. ड्यूरिंग हिज रूल पावर केम टू द हैंड्स ऑफ उसूरपर कॉल्ड तुफेल खान. उसूरपर का मतलब क्या होता है? जैसे डिक्टेटर्स होते हैं ना, जबरदस्ती वो लोग कंट्री को रूल करते हैं. तो ये आए उसूरपर, उन्होंने जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया, इलीगली टेक ओवर कर दिया. ठीक है. पूरे डायनास्टी को इसलिए अभी तुम नहीं रूल करोगे, तुम निकलो अपने थ्रोन से, मैं करूंगा करके उनको डरा धमका के भगा दिया. Yes, ma'am. तुफेल खान started ruling. Ma'am, we reading about Deccan Sultanate, no, ma'am. Yes, these 5 things that we just In studied. class we have, ma'am, in class our student do like this only. Hey, तू जा रे मैं खड़ता हूँ. They will like so they are saying usurpers. ठीक है. They want power but illegally. ठीक है. इलीगली मतलब नॉट लीगल, मतलब लॉज नहीं फॉलो करते हैं, कुछ भी करके पावर ले लेते हैं अपने हाथ में. तो हमने जो इमद शाह, निजाम शाह, ये कुतुब शाह और बारिद शाह और आदिल शाह के बारे में पढ़ा. ये 5 डेक्कन सल्तनट्स के पार्ट हैं. ऑल दीज 5 कम अंडर डेक्कन सल्तनट्स. आप लोगों को अभी एक चीज करना है व्हेन यू आर राइटिंग नोट्स. आज की क्लास इतनी ही. आई जस्ट आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी गो. Just you have to do one thing. Every paragraph, no, आज ये 5 paragraphs only are there, no, so these 5 paragraphs you have to read. So आप सबसे पहले heading लिखोगे. चलो अच्छा, निजाम शाह साहब अहमदानगर. Okay, निजाम शाह को फाउंड किसने किया था? Then you will write the date. Okay, this is your heading. Then you have to write founder is मलिक अहमद. मलिक अहमद के बाद you will make a map. Okay, आप एक मैप बनाओगे. पहले मलिक अहमद, फिर एक एरो डालोगे. उनके बाद कौन आया? बुरहान. बुरहान के नीचे एरो डालोगे. उसके बाद कौन आया? हुसैन निजाम शाह. फिर एक एरो डालोगे, मुर्तजा. तो ये सारे किंग्स के नेम एरो डाल के नीचे, तो आपको ऑर्डर पता चलेगा. इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया. Ma'am, my only simple. So all these homeworks are from your textbook. Fill in the blanks है 3. These are of 3 marks. Then we have one sentence answer. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, where is सोलन खंबा मॉस्क. इसमें शायद आपको कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ चीजें हैं. I have just put it here because I want you to search and write. थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो. I don't have